પર ગયો હતો? વેકેશન પર ગયો હતો? એક દિવસ અચ્છા, એક જ દિવસ એવું? એક બે પાંચ દિવસ. અચ્છા. Recording in progress. કેમ આંકડા પડેલા છે ક્લાસના? એક્ઝામ ચાલે છે તમે? શેની એક્ઝામ ચાલે? હા, તે ના આપો તો ના ચાલે? આપવી પડે? મારે કાલથી પડતું શું કહે છે? મારે કાલથી પડતું એ લખ્યું. હા, સ્કૂલની એક્ઝામ તો સારી જાય છે ને? બધી સારી છે. કોઈ એક તો સારી જાય તો ચાલે એમ. સ્કૂલની જતી હોય તો બીજી કઈ નહીં, ઠીક છે. તો બસ એની જ એક્સાઇટમેન્ટ હશે અત્યારે એક્ઝામની, બીજા કશાની નથી. વર્લ્ડ કપ તમે હશો ને બધા ક્રિકેટના શોખીન તો હશો? હા, ક્યાંથી ચર્ચા? મને નથી ખબર. मैं तो जापानीज ग्राउंड की है। हाँ? जापानीज ग्राउंड की है। हाँ, वो तो अभी चल रही है, लेकिन उसके अलावा नहीं. નવરાત્રી કે આ વર્ષે નથી જવાનું એ પ્રતિજ્ઞા તો નથી દીધી ને કોઈ? બરાબર. ઓલ વર્ક એન્ડ નો ફન મેક યુ અ ડલ પર્સન. બરાબર છે. કયા પિક્ચરનો ડાયલોગ છે? ચાલો, હવે મને નથી લાગતું કોઈ આવશે ના. હજુ ને એક બે તો આવશે, તો એ આપણે ચાલુ કરી દઈએ. શું ચાલી રહ્યું છે? વોટ આર યુ વિટનેસિંગ ઇન ધ ન્યૂઝ? 41 અને 42 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ. ઓકે, દેન દેટ મીન્સ ઇન્ડિયામાં ટોટલ કેટલી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે? 42. એમાં મિક્સ કેટેગરીની કેટલી છે? If a question is asked, how many World Heritage Sites under mixed categories are there in India? Mixed કેમ? There are, બધું કરાવું છું આ તો ખાલી અત્યારે, તો બી આનો આન્સર આપો પછી આ જ કરાવવાનું છે અત્યારે નહીં એટલે. 1. Answer is 1 out of 42. There is only one World Heritage Site which is in mixed category. Mixed category means natural World Heritage Sites are different. For an example, Nilgiri is a natural World Heritage Site. It's not man-made. Then there are man-made structures. બરાબર? Taj Mahal, Red Fort. બરાબર? વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ વાળી જગ્યાના નામ નહીં બદલાય અનફોર્ચ્યુનેટલી. બરાબર? એ એવા ને એવા જ રહી શકશે. બિકોઝ ધ મોમેન્ટ યુ ચેન્જ ઇટ, તો તમારી જોડે જે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો ટેગ છે એ શું છે? પાછું લઈ લેશે. એટલે અમદાવાદનું નામ હોપફુલી અમદાવાદ જ રહેશે એવું મારું માનવું છે. બરાબર? અમદાવાદ ઇઝ અ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી. સિટી. ઠીક છે. પછી અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ સુખોઈ. ઓકે, વુમન रिजर्वेशन बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है. कितना परसेंटेज मिला है? 33%. कहीं और थे वुमन रिजर्वेशन?
कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। Yes, this is important. See, at the institutional level, the first time reservations were provided to female at third federal level या ग्राम पंचायती level. Some states have 1/3 minimum, and even some states have half. Okay, depends upon state to state. But that was the first time that seats were reserved in political institutions for women. ठीक है, उसको थोड़ा और कचरा क्लियर होने दो, क्योंकि अगर वो पढ़ाना है तो मुझे दो चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी, एक वुमेन रिजर्वेशन और दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. व्हाई? बिकॉज दिस रिजर्वेशन विल बी एनफोर्स्ड आफ्टर अ न्यू सेंसस एंड आफ्टर डिलिमिटेशन. आफ्टर सेंसस, खास करके सेंसस के बाद क्या करना पड़ता है? डिलिमिटेशन करना पड़ता है. समझ रहे हो? जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपको लोकसभा में सीट, सेंट्रल असेंबली में सीट्स, और उसके बाद क्या मिलेगा? जाके 33% रिजर्वेशन. ठीक है, फिर और कुछ? हाँ, वो कहाँ पे है स्टेच्यू? ओमकारेश्वर. देखो, आदि शंकराचार्य के डेडिकेशन में एक और स्टैच्यू हमारे पास आया है. बहुत बनाए हैं हमने, लेकिन फिर अच्छा ऐसा हर जगह एक एक होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये 3-4 साल पहले बद्रीनाथ के पास या केदारनाथ के पास, दो नाथ में से कोई एक जगह पे ऑलरेडी ये सर का बनाया था हमने, शंकराचार्य जी का. अभी दूसरा और कहीं पे और अच्छा अलग पोजीशन में बनाया होगा. ठीक है, लेकिन वो कौन है? आदि शंकराचार्य. ठीक है, उन पे ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फिलोसॉफी प्रोवाइडेड. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अद्वैत फिलोसॉफी. बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत, क्योंकि उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? अद्वैत फिलोसॉफी देना. ठीक है, चलो ठीक है. और कुछ किसी को कहना है? Rahul Navin has been elected as the director of PD. कौन? Rahul Navin. हैं? राहुल? Navin. हाँ, राहुल गांधी मान लो। मेरा वो हमारे एक एमपी जैसा है, वो एक है, तो राहुल गांधी के अलावा कोई दिखता नहीं है. मेरा भी ऐसा हो गया, राहुल बोला ना तो डायरेक्ट गांधी दिखता है. ठीक है, अच्छा अच्छा. Vanadium is found at the हाँ. coast of Alam Bhavni. हाँ, देखो, वेनेडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज वन ऑफ अ वेरी रिक्वायर्ड केमिकल जो हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं. जस्ट लाइक लिथियम. लिथियम के पास हमारे पास रिजर्व नहीं थे, फिर जम्मू कश्मीर में मिले. ठीक है, इसी तरह वेनेडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो गुजरात की कोस्ट है, गाँव, हाँ, भावनगर के पास, वहाँ से मिला. ठीक है, और कोई नहीं पढ़ता इधर में से कुछ भी. India's first transgender OPD. हाँ, यस, ट्रांसजेंडर कहाँ पे? मेरे को, मैं बताऊंगा आंसर शायद. लेट मी कराए. पढ़ा है, लेकिन मुझे याद है कि नहीं है. महाराष्ट्र, कर्नाटक. Delhi. बहुत दूर है। बहुत दूर है. हाँ, वो was not even close. Yes, first transgender OPD. OPD का फुल फॉर्म? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, फिर Operation Sabar. તમે લોકો બોલો ભાઈ, પાછળવાળા તમે લોકો આ સાઈડ. અવાજ ક્યાં છે? વાંચતા નથી કે શું? હવે તો સપ્ટેમ્બર બી પતી ગયો, 2 મહિના બાકી છે, બધી એક્ઝામ છે કે નહીં? सिम्बैक्स एक्सरसाइज. सिम्बैक्स मतलब किसका है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. ठीक है, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो. ठीक है, गुड. Joe Biden will be the chief guest of Republic रिपब्लिक डे, जो बाइडेन. ठीक है, जोसेफ बाइडेन नाम है पूरा. आपकी एग्जाम में पूछते हैं ऐसा. वो ज़ेलेंस्की वाला क्वेश्चन देखा था ना आपने, तो जो बाइडेन मत करते रहना. अंकल का नाम क्या है? जोसेफ बाइडेन. ठीक है, Rahul Mishra won the Knight of the Order of Arts and Letters, France. फ्रांस. ओके, मैं कीधું તું ને 2 જણા આવશે, હજુ એક એક્સપેક્ટ છે અમારે. Operation Sabar. ऑपरेशन Sabar. कहाँ? मुझे पता प्राइस जीता है. इंडियन कोस्ट गार्ड. ओके,
चलो भाइयों लखो હવે हाँ I love my India. I love the Constitution of India. I follow it. ठीक है वो कई खास बोली नहीं सकूँ बाकी इट्स મેજરલી પોલિટિકલ જે ભાઈનું શૂટિંગ થયું છે એનું નામ તમને ખાલી યાદ રહેવું જોઈએ બાકી એન્જોય ઠીક है આ બધા 2-3 ડાયલોગ બોલતા રહેવું સારું છે સમજ્યા ખાલી ખબર પડી કોઈ એક્ટ્રેસ મારા ઉપર કોમેન્ટ આપી દે આજકાલ બધા બરાબર ચલો સૌથી પહેલે આનું લખો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो लॉन्ग बैक अंडर अ कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को किसका है यूनेस्को टैग कौन देता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को किसका एजेंसी है यूनाइटेड नेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पेरिस में हेडक्वार्टर है वो पता होना चाहिए ठीक है दे started giving out a list which they think it's duty of everybody means every government and citizens to protect that particular site because it has historical heritage cultural importance for mankind समझ गए क्यों बचाना है इन सब जगहों को ठीक है so they started coming out with different type of list ठीक है 1983 में शुरू हुआ था उसके पहले इंडिया की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया मैं भी आपको बताता हूँ कौन पहले से और फिर क्या होता है एवरी कंट्री साइंस रिकमेंडेशन टू किसको यूनेस्को दे कंसिडर इट दे सी इट कि आप कितना ध्यान रखते हो इस मॉन्यूमेंट का क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है आफ्टर ऑल दिस कंसिडरेशंस आपको वो टैग दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ठीक है चलो लिखो सबसे पहला हमारे पास कौन है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था देखो 1983 में हमें 3 जगह पे मिला था अगर आगरा फोर्ट अजंता केव्स इलोरा केव्स समझ गए ये 3 भाई लोग को मिला था कब 1983 में सो दिस वर द फर्स्ट 3 प्लेसेस दैट वर recognized by UNESCO in India as World Heritage Site. Now the list has total 3 divisions. One is cultural जिसमें अभी इंडिया में कितने हैं 34 sites कितने हैं 34 फिर है नेचुरल जिसमें मैंने अभी कितने बताए थे आपको नहीं वो मिक्स में बताए थे वेरी गुड यार आप क्या है 10 मिनट पहले वाली चीज भी भूल जाओ नेचुरल में 7 है मिक्स में 1 है एक ओनली 1 साइड मिक्स मतलब इट इज ऑल्सो नेचुरली इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो कल्चरली इंपॉर्टेंट इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम मिक्स्ड मिक्स वाला कौन है लिखो खानचेनजोंगा नेशनल पार्क खानचेनजोंगा हाँ हाँ वो पूरा नेशनल पार्क है वो पूरा का पूरा क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाउ कितना करेक्ट मेरा प्रेडिक्शन है कि नहीं इफ दे आस्क यू द लेटेस्ट साइट्स एडेड तो कौन सी लिखोगे शांति बस होयसाला टेम्पल्स 2 लिखो पहले अभी एक की एक बाद एक आपको एकदम डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन लिखने पड़ेंगे ठीक है होयसाला टेम्पल होयसाला टेम्पल
पिक्चर नहीं देखते ना, वरना अभी आपको बता देता हूँ होयसाला क्या है, लेकिन आप पिक्चर नहीं देखते, मैं कुछ नहीं कर सकता। બધું જ શીખવાડું, જસ્ટ ગીવ મી 1 મિનિટ. લખાઈ ગયું? હવે પહેલા હોયસાલા વિશે ભણવું છે કે શાંતિ નિકેતન વિશે ભણવું છે? હા, અને શાંતિ નિકેતન જો તમને યાદ હોય તો આપણે ઓલરેડી કવર કરી લીધું છે. જ્યારે આપણે લિસ્ટ મોકલ્યું હતું, ટેન્ટેટિવલી જ્યારે સિલેક્ટ થયું હતું ત્યારે જ આપણે આખું શાંતિ નિકેતન કર્યું છે. એટલે અત્યારે પહેલો હોયસાલા પછી શાંતિ નિકેતન રિવાઇઝ કર્યું. કોણ છે? ધીરુભાઈ અંબાણી, સોરી મુકેશ અંબાણી. હા બરાબર. હા ચલો આગળ લખો. The name they have given is official क्या है? Sacred Ensemble of the Hoysala. Sacred Ensemble. Ensemble means बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती है. क्यों? Because एक नहीं 3 अलग अलग टेम्पल्स को हमने इसमें recognition दिया है. Sacred Ensemble of Hoysala. कब बने थे? 12 to 13 सेंचुरीज के बीच में. ठीक है, 3 टेम्पल्स है जिनको ये एक साथ ये टाइम मिला, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एंसेंबल. एक चिन्ना केशवा टेम्पल बेलूर. मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब पढ़ने में. होयसाला टेम्पल, होयसालेश्वरा. होयसाल, साल एसएल, होय एचओवाई, श्वरा एसएचडब्ल्यूएआरए. होयसालेश्वरा टेम्पल, हेलेबिड HALEBID. केशव टेम्पल, सोमनाथपुरा. ठीक है, क्या? हाँ लेकिन हेलेबिड HALEBID બે હેલેબેરી એક્ટ્રેસ નથી ખબર યાર. હેલી અને બીડ BID, હેલીબીડ. નામ લખવામાં કઈ રીતના પ્રોબ્લેમ થઈ શકે આ રીતના? તમે મને કોઈ બી નામ આપો, લખી આપું તમને. ઝેલેન્સ્કી, ZELENSKY, ખતમ વાત. આગળ આ 3 ટેમ્પલ ક્યારે બન્યા? 12 to 13 સેન્ચુરીમાં. राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट होयसाला डायनेस्टी. डायनेस्टी मतलब बहुत सारे जनरेशन आएंगे, समझ रहे हो? सम इंफॉर्मेशन अबाउट होयसाला डायनेस्टी. ये डायनेस्टी मतलब पूरे फैमिली ने कितने साल रूल किया? अप्रोक्सीमेटली 400 फ्रॉम 10th to 14th सेंचुरी. 10 लिखो, 14 लिखो और ऊपर CE लिख दो, बात खत्म. ठीक है, देखो होयसाला कहाँ पे आया? कर्नाटक में. थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनके नीचे इस टाइम पे कौन डोमिनेंट था? चोलास. पढ़ चुके हैं चोला के बारे में. उनके ऊपर कौन थे? वेस्टर्न चालुक्य. वेस्टर्न चालुक्य. ये दोनों का डाउनफॉल हुआ तो बॉस कौन बन गया? होयसाला. ठीक है, they were actually a feudatory. feudatory मतलब मैं बॉस हूँ और आप सब नहीं, सॉरी, आप सब बॉस हो और मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपका क्या हो गया? feudatory. Hoysala were the feudatory of Western Chalukyas, but after their decline and Chola's decline, कौन बॉस बन गया? होयसाला. लिखो. कैसे लिखोगे? नीचे चोला लिखो, लेफ्ट में होयसाला लिखो और ऊपर कौन लिखो? वेस्टर्न चालुक्य. क्रिएटिविटी रखो, नोट्स ऐसी बनाओ कि पढ़ने में मजा आए. और वेस्टर्न चालुक्य के नीचे एक एरो करके इनका नाम लिख दो, होयसाला का. मतलब उनका बॉस कौन था? वेस्टर्न चालुक्य.
ठीक है, उनके नीचे कौन काम करता था? होयसाला, ठीक है। उनके कैपिटल क्या थे? अभी हमने लिखा ना, बेलूर लिखा था सबसे पहले, वो उनका कैपिटल था। और दूसरा हमने हेलिबिड भी लिखा कि नहीं, वो भी उनका कैपिटल था। हेलिबिड के नीचे आप लिखो, जहां पे आपने लिखा है द्वार समुद्र। देखो नाम से क्या पता चलता है, द्वार टू समुद्र, साउथ का रोड, ठीक है। देखो ये आप अगर चाहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज पूछ भी सकते हैं, गॉड नोस। बट इफ यू वांट अपने आप से, तो आप एक चीज कर सकते हो, ये 3 टेम्पल किसने बनाए हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो बॉस होगा कि नहीं होगा बनाने वाला, वो आप लोग ढूंढो अपने आप। कैसे ढूंढ सकते हो? इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा काम आपका बढ़े और आप खुद करो, ठीक है। नाम से पता चल जाना चाहिए, चिन्ना केशवा। केशव कौन है? कृष्ण भाई। बेसिकली इट्स अ विष्णु टेम्पल, समझ रहे हो, बिकॉज कृष्ण कौन है? विष्णु है, ठीक है। तो सब स्टोरी समझ गए ना आप लोग, ठीक है। चिन्ना केशवा इज डेडिकेटेड टू विष्णु, ठीक है। किसने बनाया था? विष्णुवर्धन ने बनाया। विष्णुवर्धन ने क्यों बनाया था? क्योंकि इसने चोला को पीटा था, दैट मीन्स ही डिफीटेड द चोलास। सो विष्णुवर्धन खुश हो गया, उसने क्या बना दिया? मंदिर बना दो, ठीक है। ये कब बनाया? 1117, 1117। चिन्ना केशवा टेम्पल कब बना? 1117। किसने बनाया? विष्णुवर्धन ने। क्यों बनाया? ही डिफीटेड चोलास, सिंपल, ठीक है। केशव टेम्पल लिखो, जो सोमनाथपुरा में है, पढ़ा के नहीं हमने? अभी तीसरा लिखवाया था मैंने। वो कब बनाया? 1268, 1268। ये किसने बनाया? सोमनाथ ने बनवाया, अपने किंग के कहने पे। सोमनाथ इज अ जनरल, मतलब मेरा सेनापति होगा, और मेरा नाम क्या है? द किंग नेम इज नरसिम्हा III। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो 2 मैंने आपको लिखवा है, ये बोथ आर वैष्णव श्राइन्स। वैष्णव बेसिकली मीन्स विष्णु। जो तीसरा बाकी रह गया, कौन है? होयसालेश्वरा। वो किसका होगा? शिव, ठीक है। इट्स अ शैवाइट श्राइन, ठीक है, शैवाइट। देखो एक सिंपल बात है, समझ लो। जो भी टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में बनते हैं ना, आप लोग घूमे हो, और अगर आपको ये सब देखने की इच्छा होती है तो मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं जाता भी रहता हूँ। दे आर मेड इन नागर स्टाइल। नागर हमारा एक गुजरात का भी कॉमन वर्ड है, समझते हो कि नहीं, ठीक है। जितने भी नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बनते हैं, वो कौन से स्टाइल में बनते हैं? नागर। साउथ में जैसे जाते हो तो वहां पे अभी एक नेम बहुत फेमस है, डीएमके तो सुना होगा आपने, नाम क्या है? द्रविड़ा, मुन्नेत्रा खासकर। तो जो द्रविड़ा है, साउथ में जितने भी टेम्पल्स बनते हैं वो कौन से स्टाइल में बनते हैं? द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। और ये लोग जो स्टाइल बनाते हैं, होयसालास, उनका स्टाइल बहुत अलग है। दे मेक स्टार शेप टेम्पल्स। कैसे बनाते हैं? स्टार शेप सैंपल लिखो।
उनका स्टाइल दोनों से अलग है, ठीक है। ये इतना इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि ये रिकग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हो। एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज, तो उसमें से यही इंफॉर्मेशन पूछेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, स्टार शेप प्लेटफॉर्म बनाते हैं ये लोग, ठीक है। स्टार शेप प्लेटफॉर्म। हाँ, one more thing, they use a very special type of sandstone. Sandstone है तो basically it is very soft relatively other stones. So they have been carving very beautiful sculptures. उनका पूरे outer surface of the temple. Why? Because उनका जो stone है वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। आप इन तीन के फोटो भी देखोगे घर पे जाके, मेरे हिसाब से देखने चाहिए आपको। तो पूरी दीवार भरी होती है किससे? स्कल्पचर्स से, और वो भी बहुत ही माइन्यूट स्कल्पचर। आप बोलोगे सर वो तो मोटेरा में भी है, हाँ है, लेकिन इनका बहुत ही माइन्यूट डिटेल्ड होता है। व्हाई? बिकॉज वो लोग ऐसा स्टोन यूज करते हैं और पिक्चर नहीं देखते, वरना इनका बैंड बजाया, बैंड मतलब द डायनेस्टी डिक्लाइन, खत्म हो गई। नाम सुना है अलादीन खिलजी का, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही जोरदार इंसान था, ठीक है। हिज जनरल मालिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी's जनरल मालिक कफूर, he defeated and that was the decline of Hoysal kingdom, ठीक है। मालिक कफूर, ठीक है। ये मालिक कफूर की स्टोरी भी बहुत जोरदार है, गुजरात से रिलेटेड है एक्चुअली। तो खिलजी attacked Gujarat first. After Rajasthan, he came to Gujarat. For the Gujarat, he won Khambat. So in Khambat, he got a slave. But he was very impressed by his skills. In general, short में बता रहा हूँ आपको. That slave is Malik Kafur from Khambat, Gujarat. And this man is actually one of the very good generals. अभी किसी और एंगल से नहीं देखना है, सिर्फ एक ही एंगल से देखना है। जनरल मतलब जिसका काम क्या है? जीतना। बिकॉज ही वॉन होल साउथ इंडिया फॉर हिज बॉस, पूरा साउथ इंडिया वन बाय वन। ही वेंट अप टू तमिलनाडु, ठीक है। गुड जनरल। चलो, મને ખબર છે પણ તમે લોકો પિક્ચર નથી જોતા તો હું શું કરું? ના, એક જ પિક્ચર છે અલાઉદ્દીન ખિલજી પર। મલિક કફૂર પર કોઈ બન્યું નથી। બાકી બે જોયું હોય ને તો સમજ નથી। બટ આ તો મારું ઇન જનરલ હોય છે રીડિંગ, એટલે મને ખબર છે। હા, બસ તો એક જ છે। અને બાકી જોવું હોય તો ભારત એક ખોજ જોવું પડશે, પણ એમાં બધું નોર્મલાઇઝ બતાવ્યું છે। નોર્મલાઇઝ એટલે ફ્રોમ અ ગુડ પર્સપેક્ટિવ। બટ આ તો જોરદાર, અને ગુજરાત છે ઇન્ક્લુડેડ, સો આઈ લાઇક ઇટ। જેમાં ગુજરાતની હિસ્ટ્રી વધારે અટેચ હોય, આઈ લાઇક ટુ રીડ ધેટ હિસ્ટ્રી મોર। તાનાજીનો વિલેન મલિક કફૂર હતો? ના, આ બધા 1200 માં હતા। આ જે સ્ટોરી છે ને ક્યારની કરું છું, 12th સેન્ચુરીની। આ તાનાજી બાનાજી બધા 400 વર્ષ પછી આયા, આફ્ટર 400 years, ઓકે। શિવાજી મહારાજ 1650s and this is all 1200, 450 years પછી। so long difference, બરાબર। ચલો, શાંતિ નિકેતન માટે લખો। શાંતિ નિકેતન માટે શું ખબર છે તમને લોકોને? હે? બસ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, બીજું કશું નથી આઈડિયા? શું કહે છે? એક્સિલેન્ટ। પછી
ચલો લખો. અગેન મારો આ ક્વેશ્ચન પૂછવાનો મતલબ એ હતો કે મેં તમને પહેલે જે ભણાવ્યું છે એ તમને કેટલું યાદ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી તમને કશું નથી યાદ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. હવે લખો. It was established in 1901 by Rabindranath Tagore as a residential school. ભાઈ આજે કંઈક છે ઇન્ડિયાનું કે કોઈનું? આજકાલ તો આવું બધું આમ છે આજે કંઈક? ના, આટલો બધો અવાજ આવ્યો ને કંઈક રેલી વેલી જેવું. बराबर. इट इज अ रेसिडेंशियल स्कूल. ठीक है. बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस. ठीक है. एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस. ठीक है. अभी ध्यान से सुनना. ये एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन का मतलब क्या है? गुरुकुल सिस्टम सुना है? या बच्चे लोग किसके घर पे रहते थे? टीचर के घर पे. ठीक है. सो इट वाज मॉडल ऑन दैट आइडिया. समझ रहे हो? दैट स्टूडेंट्स विल स्टे विद टीचर इन शांति निकेतन. मजा नी लाइफ. बराबर. मेरे को कोई नहीं ले गया वरना मैं भी चला जाता. इट लेटर चेंज इट्स नेम टू विश्व भारती यूनिवर्सिटी. विश्व भारती यूनिवर्सिटी. कब हुआ? इन 1921. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1921. ठीक है. ये 41 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपना बना है. ठीक है. कौन से नंबर का? 41. ठीक है. अब थोड़ा सा, अगर ये 41 है तो 42 कौन सा होगा? होयसाला. ठीक है. अभी इसके बारे में, रविंद्र भाई के बारे में थोड़ा लिख लो. इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. नो थ्रेट टू लाइफ. नो केस ऑफ सेडिशन. ठीक है. लिखो. रविंद्रनाथ टैगोर. His father name is Devendranath Tagore. ठीक है. अंकल को सब आता है. मतलब फिजिक्स भी आता है, मैथ्स भी आता है, पोएट्री भी लिख लेता हूँ. ठीक है. ऐसा ऑलराउंडर थे. ठीक है. ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पॉलीमैथ. ठीक है. He was a polymath basically. फिर 1913 में उनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज. किसके लिए? लिटरेचर के लिए. किसके लिए? गीतांजलि लिखा उन्होंने. लिखो 1913. एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन. समझ रहे हो? फर्स्ट एशियन. मतलब ऐसा 2014 के पहले भी ऐसा सब होता. ठीक है. नोबेल प्राइज मिलते थे हमें. और उनको नाइटहुड मिल गया 1915 में. किंग जॉर्ज फाई ने दिया. क्या मिल गया? नाइटहुड. ठीक है. किसने दिया? किंग जॉर्ज फाई ने. लेकिन फिर 1919 में जलियांवाला बाग हो गया तो उन्होंने रिनाउंस कर दिया. ठीक है कि मेरे को नहीं चाहिए, ये तेरे पास रखो. ठीक है. हाँ, ये भाई साहब ने नेशनल एंथम तो लिखा ही है, जन गण मन, लेकिन हमारे साथ बांग्लादेश का भी लिखा था, क्योंकि पहले तो सब भाई बहन एक ही घर में रहते थे. अमर सोनार बांग्ला, वो किसका है? बांग्लादेश का. He has even inspired. ध्यान से सुनना, वर्ड क्या यूज किया है अभी? इंस्पायर्ड.
द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका. एंड अ वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ बंगाल. वो लोग गाते रहते हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, एकला चलो रे. वो भी किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा है. ठीक है. 8 के 2 इंसान ने बहुत सीरियसली ले ली ये बात. एकला चलने लगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं. ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको भी ऐसा है तो एकला चलो रे. ठीक है. और चलना, गाड़ी और एक्टिवा मत चलाना. ठीक है. चलो लिख लिया. वी आर डन विथ बोथ दिस साइड्स. लेकिन अभी कुछ और इंफॉर्मेशन लिखनी है. वो लिखो. ये जो टैग देने का शुरू किया उसके पीछे कन्वेंशन है. लिखो. प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. प्रोटेक्शन of the world natural and cultural heritage adopted by UNESCO in 1972. Adopted by UNESCO in 1972. ये इतने सालों पहले जो हमने इंटरनेशनल ट्रीटी एक्सेप्ट की है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, इसके वजह से ये सब सारी चीजें हो रही है. ठीक है. और लास्ट लिखो. लास्ट हमें ये जो टैग मिला अभी वो कौन सी जगह से मिला है? लिखो. सितंबर 18 में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की 45th सेशन 18 सितंबर को, थैंक्स टू मोदी जी, उनका बर्थडे एक दिन पहले था 17 को, तो उनकी वजह से हुआ होगा. ठीक है. तो 18 को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कि 45th सेशन जो हुआ, कहां पे हुआ? इन रियाद. रियाद किसका कैपिटल है? सऊदी अरेबिया. ठीक है. 45th. अभी 45th 4-5. देखो ये कमिटी क्या है? ये कमिटी जो हम भेजते हैं, मैंने बताया आपको, कंट्रीज भेजते हैं नॉमिनेशंस. ये कमिटी उससे देखती है, चेक करती है और बाद में सिलेक्शन करती है. ठीक है. ये टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ना. वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ भी ऐड होना, माइनस होना, वो इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. लेटेस्ट कौन हुआ है, सबसे पहले कौन हुआ है, वो भी पढ़ लेना. ठीक है. ऐसा पूछे आगरा फोर्ट किसने बनाया, नहीं पता, अच्छा नहीं लगता. ठीक है. पता होना चाहिए किसने बनाया. होमवर्क लिख लो. ठीक है. होमवर्क. अभी फिर बाबर भी बोल दो, जहांगीर भी बोल दो, ऐसा नहीं. होमवर्क लिख लो आप लोग. ठीक है. देखो वन मोर थिंग. हाँ, ये पता होना चाहिए कि आगरा फोर्ट कहाँ पे है. ठीक है. जितने भी साइट्स है वो सारे देख लेना. 42 बोल रहा हूँ अभी से, फिर मेरा गला मत पकड़ना. ठीक है. और जो करना है तो करना पड़ता है. और थोड़ा पढ़ो अजंता इलोरा के बारे में. ठीक है. कल्चर अभी कितना ट्रेंड में है. वी शुड नो अवर हिस्ट्री. आगे का पता नहीं, हिस्ट्री पता होना चाहिए. ठीक है. चलो आगे लिखो. ईस्ट आसियान इंडिया समिट 20 आसियान इंडिया समिट एंड 18 ईस्ट एशिया समिट. 2 मीटिंग्स थे. इंडिया आसियान का 20th, 18th ईस्ट एशियन समिट. प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू इंडोनेशिया टू अटेंड दिस मीटिंग. क्यों इंडोनेशिया गए? बिकॉज करंटली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है?
इंडोनेशिया, ठीक है, ASEAN India Summit and दूसरा ईस्ट एशिया समिट, एक हमेशा याद रखना, जब भी हम आसियान की बात करते हैं या ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, एक टर्म आता है इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन, दैट इट शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी। चाइना जैसा बॉडी बिल्डिंग करता है वैसा नहीं करने का इधर, समझे, लेकिन चाइना तब भी करता है, लेकिन ये बात है बेसिकली जब भी हम ऐसा कहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दैट इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू वर्क चाइना, ठीक है, दैट वी ऑल कंट्रीज हैव टू वर्क फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, समझ रहे हो, बिकॉज मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया था साउथ चाइना सी, अगर आपको याद हो, फिलीपाइंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ दिस ग्रुप, इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ बोथ दिस ग्रुप्स हु हैव डायरेक्ट टसल विथ चाइना, ठीक है, ये समझ रहे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है 12 पॉइंट फॉर्मूला, लिखो, क्या दिया है, 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर इंडिया आसियान रिलेशनशिप। थीम लिखो भाई, इंडिया आसियान समिट का थीम लिखो, आसियान मैटर्स, लौकी गंदा वाला आसियान मैटर्स, ठीक है, एपिसेंटम ऑफ ग्रोथ, एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये क्या है, इट इज द थीम। अभी वापस से एक बात बताता हूँ, बार बार जो मेरा कहना है, सारी अच्छी चीज़ें इसका पार्ट है। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, हाँ करना है, साउथ मतलब ऐसे सब डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप, हाँ वो करना है, ट्रेड बढ़ाना है, हाँ बढ़ाना है, क्लीन एनर्जी लानी है, हाँ लानी है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ट्रू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ब्लू इकोनॉमी, हाँ ब्लू इकोनॉमी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्लू ओशंस, हाँ वो करना है, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हाँ बढ़ाना है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सब चंगा है, ठीक है, आगे लिखो, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आसियान +6 ग्रुप, ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, याद है, 6 कंट्रीज लिखवाए थे, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये 6 ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन बाकी रह गया, बाकी कौन रह गया, अरे क्या इंडिया तो लिखवा है, रशिया, नेक्स्ट, ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स कौन है, वो लोग कौन लिखोगे, आप लोग लिखोगे, ठीक है, और इंडिया कब ईस्ट एशिया समिट का मेंबर बना, ठीक है, पक्का, क्योंकि फिर इसके भी कंट्रीज लिखवाऊंगा ना तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आसियान के कोई बता सकता है 10 मेंबर्स, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपका जनवरी से इंटेक्स समझ लूँ तो हर एक महीने में एक बार तो मिनिमम पढ़ाया होगा मैंने आसियान के 10 कंट्री का नाम, एनीवन, और मैं ऐसे बताता भी हूँ कि इंडिया के साउथ मतलब इंडिया के ईस्ट से शुरू करो तो आपकी आसियान कंट्रीज की शुरुआत होती है।
सिस्टमेटिकली गिनो। मैं बार बार बोलता था इंडिया का पार्ट था बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ साउथ एशियन कंट्री, नॉट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। उसके बाजू में कौन आता है? म्यांमार। उसके बाजू में कौन आता है? थाईलैंड। उसके बाजू में कौन आता है? मलेशिया। ठीक है, फिर ऊपर जाओ पेनिनसुला में, LCV, LCV, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। V के बाद P, वाइस प्रेसिडेंट, P फॉर फिलीपाइंस। नीचे का मेन कंट्री इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गए, और ब्रूनी, सॉरी ब्रूनी इज अ वेरी स्मॉल प्रिंसली स्टेट, हो गए 10। देखो वापस से सुनो, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, मेक माई ट्रिप है ना, MMT, उसी तरह MTM, मलेशिया 3 हो गए, MTM, LCV, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कितने हुए? 6 हो गए। V के बाद वाइस प्रेसिडेंट, V, LCV, फिर उसके बाद P, फिलीपाइंस, कितने हुए? 7। 3 बाकी है, इंडोनेशिया, सिंगापुर ने ब्रूने। वियतनाम का कैपिटल क्या है? वियतनाम का कैपिटल क्या है? ये 10 कंट्री के कैपिटल पढ़ गया ना, नेक्स्ट टाइम कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, ठीक है? क्यों होची भी नहीं है? होमवर्क लिखो। कंबोडिया का लाओस का मैं आपको बताता हूं, मैं पढ़ के नहीं आया लेकिन मुझे याद है, सिर्फ पढ़ा था बहुत टाइम पहले। चलो आगे लिखो। अरे पर गूगल करवानी शू जरूरत थी। चलो लखो, इंद्रजल। इंद्रजल, इंद्र माने कौन है? अर्जुन के पप्पा, और जल मतलब पानी। हाँ नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज। इंद्रजल, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब आपके हिसाब से ये चीज क्या करती होगी? ये जो इंद्रजल है विच इज अ एंटी ड्रोन सिस्टम, तो क्या करता होगा? लॉजिक से आंसर अगर आपको देना होता, व्हाट इज दिस करके अगर आपको पूछता तो आप क्या बताते? क्या करता होगा? एंटी ड्रोन सिस्टम है। यस, प्लीज अप्लाई। कहीं हर बार ये क्वेश्चन नहीं, किसी क्वेश्चन में ड्रोन से एंटी है मतलब इट विल बी टारगेटिंग ड्रोन। अगर मैं ड्रोन को टारगेट कर रहा हूं, सो बेसिकली आई एम प्रोटेक्टिंग माय अदर एसेट्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो लिखो, किसने बनाया है ये? ग्रीन रोबोटिक्स, बेस्ड इन हैदराबाद। It is world's only wide area counter unmanned aircraft system. Unmanned aircraft सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0।
ये क्या लगता है? अडॉप्ट हेरिटेज, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 मतलब स्कीम वापस थोड़ी नई आई है। 2.0 ठीक है, समझते हो कि नहीं? तो 1.0 भी होगा। क्या लगता है स्कीम पढ़ के आपको? व्हाट डू यू थिंक? ये किसके बारे में होगी? अडॉप्ट अ हेरिटेज। क्या कह रहे हैं? अडॉप्ट करना है। किसको करना है? हेरिटेज को करना है। तो क्या हो सकता है? जब अडॉप्ट करते हो बेसिकली आप क्या करते हो? किसी को अडॉप्ट करते हो तो यू लुक आफ्टर देम, यू प्रोटेक्ट, यू केयर, इजंट इट? और यहाँ पे हम किसकी केयर करने वाले हैं? हेरिटेज की, ठीक है? वो हार्ट ऐसा शेप बना के अंदर नाम नहीं लिखने का, ऐसे केयर करने का, ठीक है? दैट हैपेंड रिसेंटली। कोलोसियम तो पता है आपको, है कि नहीं? पता है? पता है, हाँ। सो इट्स सच अ बिग मॉन्यूमेंट। तो वहाँ पे कोई ब्रिटिश सिटीजन आया था, तो भाई ने अंदर खोद के अपने हीरो हीरोइन का नाम लिखा। सो ही वॉज एक्चुअली कॉट, अ मैन हंट वॉज लॉन्च बाय द पुलिस कि भाई तू ये क्या कर रहा है? दिस इज लाइक अ 2000 ईयर ओल्ड मॉन्यूमेंट, 2000 साल पुराना, और तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो लिखो। मैं भी बहुत देखता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तो लिखा होता है, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे लॉन्च एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ASI लिखने का और एक एरो मार देने का। मतलब ये किसने बनाया है? ASI ने, ठीक है? दो पोर्टल भी नए बनाए हैं। इंडियन हेरिटेज ऐप बनाया है, इंडियन हेरिटेज ऐप बनाया है, एंड ई परमिशन पोर्टल बनाया है। पोर्टल, हाँ। अभी इसमें पता है क्या होता है? अभी ध्यान से सुनना, प्रोग्राम में क्या होगा। सपोज यू आर अ कॉर्पोरेट ग्रुप एंड यू वांट टू अडॉप्ट अ हेरिटेज। सो बेसिकली ये प्रोग्राम में क्या होगा? कोई कॉर्पोरेट ग्रुप है, उनको क्या करना है? अप्लाई करना है, एंड दे हैव टू अडॉप्ट अ हेरिटेज। और अडॉप्ट क्यों करना है? सो दैट दे हैव टू इंक्रीज द फैसिलिटीज दैट आर गिवन टू द पीपल हु आर विजिटिंग दिस मॉन्यूमेंट। समझ रहे हो? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रेड फोर्ट किसी को ऐसे एडॉप्ट बेच डालो, मैं कह रहा था, फिर मेरे को लगा ठीक नहीं होगा। रेड फोर्ट किसी को दे दो, ये अजंता एलोरा किसी को दे दो। वाई? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए आप बेहतर फैसिलिटीज रखो, ठीक है कि नहीं है? और फिर आपका जो प्रमोशन होगा आपके फर्म का वो अलग। सो व्हाट इज दिस? अंडर CSR, a corporate entity can adopt a heritage with a view to increase the facilities. बस बात खत्म। શેનો અવાજ છે આટલો બધો? ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય તો કહેજો, મેં તો નથી સાંભળ્યું. नेक्स्ट, ये आसियान समिट में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट ही विल ओपन एन एम्बेसी, जहां पे अभी तक नहीं थी। कहां पे? लिखो, टिमोर लेस्टी। और टिमोर लेस्टी की कौन सी जगह पे? डिली, DILI, ठीक है? आपका काम क्या है? टिमोर लेस्टी कहां पे है वो ढूंढ के आना। टिमोर लेस्टी क्या है? इट्स कंट्री, और उस कंट्री की कौन सी जगह पे हम एम्बेसी खोलेंगे? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली एक ही है भाई, इधर वाला। ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ वरुण
exercise between India and French Navy. वरुण कौन है भाई? कौन है इधर? तो कोई तो हो गए who are well versed with Indian culture. कौन है वो? वो तो इंद्र भाई का, इंद्र भगवान का डिपार्टमेंट है. ये तो वायु बहनों डिपार्टमेंट है. वरुण माने लॉर्ड ऑफ ओशंस, लॉर्ड ऑफ रिंग्स है ना. वरुण भगवान कौन है भाई? पानी पानी के और ओशंस के. ठीक है, इसलिए नाम क्या रखा है? 21st एडिशन ऑफ वरुण. ठीक है, कहाँ पे होगा? इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी इन अरेबियन सी. (2023) बराबर. सी, इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 1993 और 2001 में इसका नामकरण बदल के वरुण कर दिया. इमेजिन फ्रेंच पीपल सो काइंड. हाँ भाई, वरुण रखना है तो रखना, हम आ जाएंगे. ठीक है, वी डोंट केयर. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. कहां पे लॉन्च किया था ये? G20. वेरी गुड. बायोफ्यूल क्या होता है? किसको पता है, आइडिया है बायोफ्यूल का? बायोफ्यूल वो फ्यूल जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. हाँ हाश, एक जण भी बोल्યું ને ભાઈ, એટલું સારું લાગે છે भाई. फ्यूल बेसिकली मीन्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. हम जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन फ्यूल. वाई? बिकॉज दोस थिंग्स आर मेड फ्रॉम कार्बन एटम्स. फॉसिल फ्यूल कहते हैं कि नहीं? फॉसिल मतलब कार्बन, सिंपल है कि नहीं? और उसके बाजू में उसका अच्छा भाई कौन है? बायोफ्यूल. बायो बेसिकली मीन्स फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. ये कैसे होता है सर? फॉर एन एग्जांपल, शक्कर होती है, उसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हो तो उससे आप क्या बना सकते हो? इथेनॉल बना सकते हो. ठीक है, जो कहाँ पे ऐड होता है? आप जो पेट्रोल पुरवाते हो ना घिस घिस के, अभी उसमें 10 और 20% एडेड होता है इथेनॉल, विच इज अ बायोफ्यूल. वाई? कैसे बना? फ्रॉम प्रोसेस्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल आइटम. समझ रहे हो कि नहीं? आपका चावल है, सड़ जाता है, उससे भी फ्यूल बना सकते हो आप. ठीक है. एंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल्स. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. ठीक है, घर पे जाके एक बार देख लेना. सिर्फ देखने को बोला है, याद रखने को नहीं बोला है. ठीक है, सिर्फ देखने को बोला है. बायोफ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स. समझ रहे हो? इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट 20% बायोफ्यूल भी अगर हम ऐड करते हैं, सो वी आर बेसिकली सेविंग 20% ऑफ कार्बन फ्यूल. पता चला ये जो 20% बचा हम तो प्रोड्यूस नहीं करते. वी डोंट हैव ऑयल रिसोर्सेज. जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है, सॉरी इंपोर्ट बिल है, उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है? मॉनेटरी एक्सचेंज. मतलब हम नहीं कम मंगाएंगे, बिकॉज 20% तो कितना है, हमें ऐड करना है इथेनॉल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दिस परस्पेक्टिव्स. ठीक है. फॉर बायोफ्यूल्स वी हैव अ नेशनल पॉलिसी. दो और एक मिशन भी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी एंड नेशनल ग्रीन मिशन. लिखो. हाँ भाई,
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी अच्छा है, उसको भी बढ़ाना है, ठीक है। इसी पॉइंट में नेक्स्ट लिखो, इंडिया, ब्राजील एंड द यूएसए, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए are the founding members of Global Biofuel Alliance. और ये तीन मिलके वर्ल्ड का 85% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं। किसका आपके हिसाब से? हाँ, थैंक गॉड। अभी total 19 countries have agreed that we will be part of this alliance, ठीक है। हमारे शेरपा का नाम क्या था? सी। Countries were struggling to achieve a consensus among G20. Why? Again, East West, North South politics. ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ये पॉलिटिक्स चलता है। इन इंडोनेशिया दे वर नॉट एबल टू रीच अ कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है? ये जो 20 रिप्रेजेंटेटिव है, दे डिड नॉट कम आउट विथ अ अग्रीड डॉक्यूमेंट, है कि नहीं? But India was successful in convincing all the 20 members to come out with a consensus and a declaration. उसका नाम क्या है? न्यू दिल्ली डेक्लरेशन। ये इतना लिख लो बस, ठीक है। अच्छा हुआ ये दोनों झगड़े पहले नहीं, वरना ये कंसेंसस नहीं आता। इंडिया कनाडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब कांड बाद में शुरू हुआ था, ठीक है। कुछ और मेजर आउटकम था इस मीटिंग का? हाँ, इंडिया वेस्ट। हाँ, क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। 2 महीने बाद, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने क्या डिसाइड किया है विद द मिडल ईस्टर्न एंड द यूरोपियन पार्टनर्स कि हम क्या बनाएंगे? एक कनेक्टिविटी बनाएंगे बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, bypassing the whole Pakistan and that region, direct connectivity, ठीक है। उसके पोर्ट्स और मैंने नोट्स डिटेल में बनाए, लेकिन फोटो खींचना भूल गया हूँ। आप लोग मेरे को नेक्स्ट टाइम याद दिलवा देना, ठीक है, क्योंकि बाकी सब बहुत डिटेल्स है। मैंने तो बहुत पोर्ट्स कौन से है, कनेक्टिविटी रोड क्या है, ये सब मैंने डिसाइड किया था, लिखा था, लेकिन उसका फोटो मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये लिख लो आप लोग से। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो अपने आप से, IMEC। मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेरे पास फोटो नहीं है, इसके लिए अभी नहीं पढ़ा। चलो भाई आगे लिखो। सिंगापुर, है? हाँ नेक्स्ट न्यूज, हाँ नेक्स्ट न्यूज। सिंगापुर फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, क्या लिखा है? फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थरमान नाम है अंकल का, थरमान।
थार मान लिखो, थार तो आता है ना लिखना, और मान मतलब मैन बेसिकली, थार मान। शान मुग रत्नम, प्रेम रतन धन पायो, उसमें जो रतन है वो वाला। शान मुग मतलब मग लिखना है बेसिकली, मग रत्नम। ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। आई गेस ये मैंने पहले लिखवाया है, ठीक है। 6 साल तक अंकल पार्टी करेंगे, मतलब उनका टर्म कितने साल का है? 6 years, ठीक है। अगर ये अभी नए हैं तो पुराने वाले का नाम लिख लो, हालिमा याकब, हालिमा याकब। Germany's largest Hindu temple to open in Berlin, ठीक है। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, ये 2004 से श्री गणेश हिंदू टेम्पल बनाने का काम चल रहा था वहां पे। अभी यूके की विच सिटी वेंट बैंकरप्ट, पढ़ाया है क्लास में इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको बता दूँ। आई हैव टॉट दिस थिंग इन द क्लास। यूके सेकंड लार्जेस्ट सिटी वेंट बैंकरप्ट, कौन सी है वो? नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन। हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स कहाँ पे शूट होता है? बर्मिंघम, लिखो। California name its highway after Indian origin police officer. कितना अच्छा बात है, हम तो यहाँ पे अपने नाम रख रहे हैं, कोई वाला हमारा नाम रख रहा है। What change, ठीक है। रोनिल सिंह नाम है। He was killed by an illegal immigrant on this highway. So, in his honor and memory, ठीक है, the highway in California has been named after this person. Who was killed by Illegal immigrant. आर्कटिक काउंसिल लिखो,
क्या लिखा है? आर्कटिक काउंसिल। देखो, इट वॉज फाउंडेड इन 1996, ओटावा, कनाडा। हाँ, अभी इसमें बेसिकली है क्या, ध्यान से समझ लो। This council is created to look after and manage the region of Arctic. All the people staying in it, रहते हैं लोग, okay? And all the resources, how it can be managed sustainably, ठीक है? टोटल 8 कंट्रीज है आर्कटिक के ग्रुप में, ठीक है? लिख लो कौन सी है। देखो, पहले बड़े बड़े भाई का नाम लिख, समझते हैं। आर्कटिक में ऊपर कौन है मेन लोग? रशिया, यूएस, कनाडा, है कि नहीं? हो गए, रशिया, यूएस, कनाडा। फिर नॉर्डिक कंट्रीज कैसे याद रख सकते हो? NSDI, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आई मायने आइसलैंड, और आई लिखा है तो एफ भी लिख लो। इफ मतलब फिनलैंड। 8 मेंबर हो गए कि नहीं हो गए? है कि नहीं? आराम से पढ़ो। फिनलैंड हो गए 8। क्या काम करना है उनको? टू लुक एंड मैनेज आफ्टर आर्कटिक। इंडिया भी इसमें ऑब्जर्वर 3 है। इंडिया कैसे पार्टी करता है यहाँ पे? ऑब्जर्वर कंट्री। ओटावा डेक्लेरेशन मैंने लिखवा दिया ना 1996, ठीक है? हाँ। इसका सेक्रेटेरिएट भी है नॉर्वे में। अभी इसका हेड कौन है? हेड मतलब चेयरमैन कौन है? नॉर्वे। रशिया था, अब कौन है? नॉर्वे। प्रेसिडेंसी किसकी है? नॉर्वे, ठीक है? इंडिया याद रखना ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है? ग्रीनलैंड आपको पता है? ग्रीनलैंड, व्हाट अबाउट इट? कौन है ग्रीनलैंड का बॉस? कौन है? वेरी गुड, प्लीज याद रखना। ग्रीनलैंड का बॉस कौन है? डेनमार्क। द होल रीजन टेरिटरी इज गवर्न्ड बाय डेनमार्क, ठीक है? चलो, अभी इंडिया कनाडा खेलना है कि नहीं खेलना है? आफ्टर सम टाइम इसमें से आधे लोग तो मेरे को कनाडा में दिख रहे हैं। फार सी आइस। कोई गए हो कनाडा कभी? जाना मत, बहुत मजा नहीं है, ठीक है? जाने की जगह नहीं है। आई विल नॉट एडवाइस, ठीक है? ऐसा थोड़ा एडवांस तो नहीं कह सकता। गुजरात इन अ डिफरेंट प्लेस जैसा लगेगा बहुत, ठीक है? दूसरी जगह जाओगे तो पंजाब इन अ डिफरेंट प्लेस लगेगा, ठीक है? तो उससे अच्छा इधर अपने असली में ना रहे, ऐसा। वो तो नकली में मज़ा नहीं आता, ठीक है? देखो, इंडिया कनाडा में एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। एक ग्रुप का नाम, अब तो नहीं पढ़ते हो पेपर और न्यूज़ भी नहीं, न्यूज़ तो देखना ही मत, पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ मत देखना, पेपर पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक ग्रुप का नाम बार बार आ रहा है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? खालिस्तान। खालिस्तान बालिस्तान सब ठीक है, वो नहीं, असली चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद आती है जहाँ पे ओरिजिनल पावर लाई करता है। जॉन विक देखा है ना आप लोगों ने? असैसिन्स होते हैं लेकिन पावर कहाँ पे है? द टेबल है। ये सब वैसी चीज़ है कि ये सब तो छोटी छोटी बात है। ऐसा ग्रुप है जिसका नाम क्या है? फाइव आइज ग्रुप। ये लिखो, सुना है, पढ़ा है? ये ऐसे ग्रुप में जाने का, ये सब ओरिजिनल ग्रुप है। फाइव आइज ग्रुप लिखो, नाम ही कितना जोरदार है। देखो, फाइव आइज ग्रुप मतलब ग्रुप की कितनी आंखें? 5 आंखें। चलो लिखो। नहीं पढ़ाना, अब कुछ डिस्प्यूट है ही नहीं यार। ये सब क्या आपको क्या थोड़े क्या लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए सब रखना पड़ता है, ठीक है? क्या कहाँ का डिस्प्यूट? क्यों डिस्प्यूट करेंगे फिर? हमको कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। पार्टी इट्स ऑल गुड, ऑल गुड। हमारे बीच में तनाव रहे वो अलग बात है, उनके बीच में दोस्ती यारी सब हमेशा होती है, ठीक है? ग्लोबल इलिक्स आर इलिक्स, वर्ड पता है इलिक्स ऐसा कुछ? कोई अभी आगे जाके शायद पढ़ लीजिए। वो हम साथ साथ है, प्रॉब्लम हमारे बीच में होता है, ठीक है? हमारे वी आर कॉमन पीपल, वी आर, प्रॉब्लम इज विद अस। उनका भाईचारा मजबूत ही रहता है, ठीक है? डोंट थिंक दैट दिस पर्सन, दिस पॉलिटिशियन हेट्स दिस पॉलिटिशियन, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों एक ही चीज में है, हमारा प्रॉब्लम अलग होता है, ठीक है? जैसे ये जो भी चीज़ है वो थोड़े टाइम रहेगी, क्योंकि अभी उधर भी इलेक्शन है, हम भी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, हमारे भी इलेक्शन आ रहे हैं। सो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल प्रोसेस प्लान, ठीक है? हम मार्क्स लाने की हमारी वो होनी चाहिए, हम वी शुड बी डेडिकेटेड टू गेट अवर मार्क्स, ठीक है? चलो वो लिखो। देखो, फाइव आइज ग्रुप है क्या? पहले वो लिखो। इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, ठीक है? बड़े बड़े भाई लोग बैठते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा भाई यूएसए, ठीक है? फिर उसका खासम खास भाई उसके नॉर्थ में कनाडा, फिर लिखो ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखो न्यूजीलैंड, और ये 4 कंट्री बसाने वाला ओजी। ओजी मतलब ओरिजिनल ग्रैंडफादर कौन है? यूके, ठीक है? इन सबका एक्चुअल बॉस, एक्चुअल, ठीक है? अब जो भी सिनारियो है, लेकिन ओरिजिनली देखने जाए एक ही है, ठीक है? ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, समझ रहे हो? और आप ग्रुप का कंपोजिशन ही देख लो, व्हाइट वॉश पूरा, ठीक है? कोई चाहिए ही नहीं आगे है कि नहीं? देख लो, नो अदर मेंबर, इमेजिन इवन फ्रांस इज नॉट अ मेंबर, इवन जर्मनी इज नॉट अ मेंबर। ये 5 कंट्री के बीच में आपको एक ही चीज कॉमन दिखेगी, क्या? द ब्रिटिश एम्पायर। व्हाई नॉट फ्रांस? लाइक यू नो, यूके एंड फ्रांस आर बेस्ट फ्रेंड। व्हाई नॉट जर्मनी? दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग वेस्ट, लेकिन ये 5 चीज में एक ही चीज कॉमन है, समझ रहे हो? इसलिए तो मैंने कहा द ओरिजिनल ग्रैंडफादर, ठीक है? चलो आगे लिखो। इट इज अ इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप and it is considered as a part of a NATO, but very exclusive. Not part in informal terms में हम क्या कहते हैं 5 आइज ग्रुप को? That it works very closely with NATO. NATO is again dominated by, it's like a younger sibling to NATO, लिख सकते हो, आर्टिकल में लिखा था ऐसा, ठीक है?
रिपोर्ट्स क्या कहते हैं बेसिकली, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और आजकल हर एक आदमी रिपोर्टर है, आप भी जर्नलिस्ट हो, आप भी जर्नलिस्ट हो, आप भी जर्नलिस्ट हो, क्योंकि वो माइक पकड़ के पॉडकास्ट तो बहुत चलते हैं हर एक इंसान के, ठीक है, फ्री है, आराम से बैठो बात करो, ठीक है। बट देर आर सम रिपोर्ट्स which says that this intelligence जो ट्रूडो भाई साहब बोले थे पार्लियामेंट में, वो कहाँ से मिला है उनको, दिस फाइव आई ग्रुप्स, ठीक है। उसे वो इंटेलिजेंस कहाँ से मिली, ही accused इंडिया ऑफ व्हाटएवर द केस में, वो कहाँ से मिला, ये 5 आंख वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको बोला, ठीक है। आगे लिखो, इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर UK and US decided that we will share our intelligence to defeat Germany. इसलिए 1943 में एक अग्रीमेंट बना जिसका नाम क्या था, ब्रूसा। ब्रूसा मतलब ब्रिटिश यूएसए। 1943 में ब्रूसा was signed between US War Department, समझ रहे हो, US War Department and a very outstanding agency of UK, my favorite, ठीक है, because मैं पिक्चरें देखता हूँ, आप लोग नहीं देखते, लिखो पहले। UK इंटेलिजेंस किसके बीच में, US War Department, UK's इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, गवर्नमेंट कोड, पूरी एजेंसी का नाम है गवर्नमेंट कोड, एंड साइफर स्कूल। साइफर मतलब समझते हो ना, टू डिकोड अ मैसेज, स्कूल। ये वही स्कूल है who decoded the enigma encryption of Germany. जर्मन के पास for the major time they had supremacy because उनका जो कोड था, एंक्रिप्शन कोड, चाबी होती है जिससे आपके मैसेज डिसाइफर होते हैं, वो कोई तोड़ ही नहीं पाया था। बट एलन ट्यूरिंग, नाम सुना है ऐसा? हाँ, तो उसमें जो आपका ये जो है अपना बेनेडिक्ट, वो किसका रोल प्ले करता है, एलन ट्यूरिंग। नाउ दिस मैन डिसाइफर दैट कोड, बेसिकली ही कंक्लूडेड ऑल दिस थिंग्स। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको याद है इसलिए बता रहा हूँ। किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, यूएस वॉर डिपार्टमेंट एंड ये इंटेलिजेंस स्कूल का। आगे लिखो, यूके यूएसए अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1946। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया, यूके यूएसए। कनाडा ने ज्वाइन किया 1949। एंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इन 1956। इट वॉज सच, ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, इतना लिखा, इट वॉज सच अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, 2010 तक तो पता भी नहीं था, ठीक है, कब बना था, कितना पुराना है, ठीक है। सो इट वॉज ए वेरी सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप, लेकिन जब फाइल्स डिक्लासिफाई होती है तब इसके बारे में पता चला, ठीक है। ये जब सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कब आया था, आपकी एक वर्ष पहले जब कोविड था, तब इस ग्रुप की बात ज्यादा होने लगी थी कि व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। एंड बेसिकली दिस ग्रुप इज पिच अगेंस्ट चाइना टू बैलेंस देयर राइट्स, समझ रहे हो। आज विलन वो है और हीरो हम हैं, कल ये टैग बदल भी सकता है, ठीक है। आइए, US recently wanted हाँ 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 हाँ
recently US wanted that this group should be expanded to include some countries with which they share their values. वैल्यूज़ में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है? वैल्यूज़ में आपको जो भी डालना है बस. दिस ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल खालिस्तान इशू. मेरे हिसाब से दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इफ़ आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस ऑन इंडिया कैनेडा एंड दिस इशू, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आई फ्रेम. नाउ दिस इज अ आइडियोलॉजी जस्ट लाइक अवर ओन. हमारे पास भी है एक हमारा वर्जन. आधे बच्चों को वो चाहिए, बाकी आधों को वो चाहिए, मतलब बाकी तीसरे को भी कुछ चाहिए, ठीक है? अलग अलग डिमांड है सबकी. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ नहीं बन सकते. आपके हिसाब से कुछ आ सकता है. कौन गया वो आ सकता है, तो उसका नाम तो पता होगा आपको. एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सिक फॉर जस्टिस अगर आपको लिखना है, ठीक है? इट इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉजिंग ऑल दिस इश्यूज, ठीक है, इन कैनेडा. फिर बाकी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ऐसा पूछ सकते हैं? मुझे नहीं लगता. बट फाइव आइज ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडियन जर्नलिस्ट आर सेइंग दैट दिस इज नॉट ए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज दैट. मैं आपको सिर्फ अलग अलग लोगों की आर्ग्यूमेंट्स बता रहा हूँ. But then there are certain groups which are saying that this information is shared by 5 groups, which itself has a lot of weightage. Why? Because इस group में कौन 5 जन बैठते हैं? It's like high table, ठीक है? That is that. चलो आगे. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है गाइस? हाँ, इंटेलिजेंस का कुछ तो मतलब होता होगा. ऐसा मत बताना कि सर कितने होशियार है आप, वो नहीं होता, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है. यस, वेरी गुड. इंटेलिजेंस सिंपली मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? सी नेक्स्ट लिखो, इंफॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा. C295 क्या लगता है आपको? ये क्या है? एयरक्राफ्ट. वेरी गुड. मतलब ये पढ़ता है लड़का. C295. इट इज अ एयरक्राफ्ट विच इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड from Spain and it was landed in Vadodara. ગુજરાતનું તમે નથી વાંચતા યાર, ठीक है? कौन बनाता है ये प्लेन? एयरबस. एयरबस कहाँ की कंपनी है? ये मजा वाला क्वेश्चन. इट्स अ यूरोपियन कंपनी, समझ लो, बस इतना मैं कह सकता हूँ. इट्स अ यूरोपियन कंट्री, फ्रांस ज्यादा, ठीक है? ये है क्या? इट इज अ हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट. बहुत बड़ा है. C295 कहाँ पे लैंड किया हमने? सबसे पहली डिलीवरी कहाँ ली इसकी? वडोदरा, ठीक है? स्टोरी ऐसे चल रही है बच्चे लोग के टाटा इज इन पार्टनरशिप विथ एयरबस. They have established their factory in Vadodara and they are going to manufacture कितना? 40 aircraft. कितने मिलने वाले हैं हमको? 40, ठीक है? डिटेल में इसके बारे में स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे. बनाएंगे यहाँ पे कितने? 40. और लाएंगे कितने उड़ा के? 16. कितने हो गए टोटल अब तक? 56. देखो, जब रफेल खरीदे थे
तो 5 सवाल पूछे थे, पूरा पैराग्राफ क्लैट में डेडिकेटेड, ठीक है। और हर एक एग्जाम में एक एक, किसने बनाया, क्या है मतलब इसका, ट्विन इंजन, सिंगल इंजन पूछा था, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी आगे लिखो, विच फ्रीडम फाइटर इज क्रेडिटेड ऑफ पॉपुलराइजिंग गणेश महोत्सव पूरे महाराष्ट्र में? बाल गंगाधर तिलक। लिखो, ये क्या था, ब्रिटिशर्स देवर कि ये मत करो वो मत करो, तो इन्होंने सोचा फेस्टिवल तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, बट दैट वाज यूज्ड एज टू ब्रिंग नेशनलिज्म इन पीपल, ठीक है। कनाडा का कैपिटल क्या है भाई? ओटावा। पक्का ना? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ, चलो। नए पार्लियामेंट का फंक्शनिंग शुरू हो गया है, पता है ना? अब से पार्टी कहाँ पे होंगी? नए नए जगह पे, नए नए वेन्यू में। और पुराने का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन। पुराने वाले बिल्डिंग का नाम क्या रखा है? संविधान सदन। ऐसा कल्चरली रहने का, इंग्लिश नहीं बोलने का, हिंदी हिंदी, ठीक है। ऐसा लोग कहता है, मेरे को तो किसी में बांधा है, साइन लैंग्वेज से भी काम चला रहता हूँ। संविधान सदन, ठीक है। क्या नाम है? संविधान सदन। ये सदन किसने बनाया था? Who were the architects? ब्रिटिश, ब्रिटिश, वेरी गुड। अच्छा, इंडियंस नहीं बोला। Who is the architect of this building? Indians. आंसर तो दयाबेन जेवा है। तारक मेहता दयाबेन। ये पढ़ाया हुआ है यार। मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का डिजाइनर कौन है? वो न्यू पार्लियामेंट। बीमल खबर नहीं, बीमल का हमारा दिवस आई जैसे हमारा। क्या है? अरे ना, गूगल करीब ना गया। हाँ वो डाल रहा हूँ। हाँ, लुटियंस दिल्ली। ये आपको दिल्ली। ये तो पसंद नहीं है काफी आजकल के लोगों को ये नाम। ल्यूटेंस मतलब ल्यूटेंस दिल्ली कहते हैं। एडविन ल्यूटेंस, और दूसरा इंसान कौन था उसका दोस्त? ये सब पढ़ाया है। नॉर्थ ब्लॉक किसने बनाया है, साउथ ब्लॉक किसने बनाया है, सब पढ़ाया हुआ है। हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। ये आईएम किसने बनाया? I am not an architect student, but I am living here since last 26 years. मैं ऐसे आता जाता हूँ। I love this building. किसने बनाया होगा? ऐसा नहीं सोचा कभी? देखा आपने आईएम कभी अंदर जाके? अच्छा, तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 इडियट्स में तो देखा होगा कि वो भी नहीं देखा। अरे हाँ, अरे नहीं, गलत ना, मिक्स मैच हो गया। 2 स्टेट्स में तो देखा होगा। इट इज लुइस खान करके, द वेरी रिनाउंड आर्किटेक्ट, उन्होंने बनाया है बिल्डिंग, ठीक है। और थोड़ा अहमदाबाद के बारे में जानते रहो, जैसे चार्ल्स कोरिया करके इज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट। उन्होंने ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नवरंगपुरा वाला, जो एएमसी अभी तोड़ने वाली है, वो उन्होंने बनाया है। और लॉरिस बेकर करके भी थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आर्किटेक्ट भी नहीं और मेरे को तो ड्रॉ करना भी नहीं आता कुछ, लेकिन ये चीज़ें एडमायर करने जैसी है वो तो करनी चाहिए। आप लोग ये लिखोगे, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक किसने डिसाइड किया? बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक क्या है? सेक्रेटेरिएट है। हु डिजाइन दैट सेक्रेटेरिएट? देखो, ये पूरे साल क्या है, कंटेंट बहुत जोरदार है आपके पास, तो डिटेल में पढ़ लेना भाई। ये मैंने सब कुछ बताया है,
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब मैंने पढ़ाया था तब हर एक चीज, ठीक है, देख लेना और पढ़ लेना, क्योंकि पूरा जगह ही बदल दिया है, ठीक है। वो कुछ भी कहीं पे दिखना नहीं चाहिए, पुराने वाले लोगों का कुछ भी छाप ऐसा, ठीक है, सब कुछ नया चाहिए अपने को। पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम। हाँ बोलते हो, पढ़ते नहीं हो। हाँ, आभार, उपकार, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू। काल एग्जाम आधी मॉक टेस्ट स्लाइड ऑनलाइन केवी गई तो कई काले कोई ना दिया अभी। ऑनलाइन है मंडे तक है। टाइम मरोगे अरे सो बिजी। आप यार मुझे सूझ है क्या फूल है? अरे तू क्या बात तो 10 हैं?